screen. मैम आप म्यूट पर हो। My screen is visible to everyone. यस Yes, मैम। ma'am. Okay. तो पावर क्वेरी में किसी का कोई डाउट? एनी डाउट रिलेटेड टू पावर क्वेरी सेशन? अगर नहीं है तो से नो, अदरवाइज से यस इफ एनीवन हैव एनी डाउट. डोंट टेक टू मच टाइम गाइस. नो मैम। Okay, so no doubt it seems good. So as I told you in already, as I told you in previous class, in our induction class, I told you power query का 4 pillars है. कितना pillar है? Total 4 pillars. So first pillar is power query. जहां पर हमने what is the use of power query? Can anyone tell me? Just now we cover our power query module. So what is the benefit of power query? मैम फॉर डाटा क्लीनिंग। Data cleaning, data transformation, data यस मैम। manipulations. So that is the use of power query, right? अगर हमें क्लाइंट से अनक्लीन डाटा मिला है तो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई को प्रायोरिटी देता है, ह्यूज डाटा है तो पावर बीआई को यूज करेंगे. देन डाटा ट्रांसफॉर्म कहाँ करेंगे? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, राइट? दैट इज द यूज ऑफ पावर क्वेरी एडिटर. सो अब फर्स्ट पिलर सबको क्लियर है, राइट? सेकंड पिलर इज योर डाटा मॉडलिंग. What is our today's topic? Our today's topic is data modeling. Anyone have any idea what is data modeling? No idea. So I give you a brief definition about data modeling in general language. So Excel Data कितनों modeling का means होता है? adding the column, deleting the column, First of all, total tell me multiplication. how many students know Excel? Raise your hand. Simran, Naman, Abhinaya. Only 2-3 students know Excel. Balu Yadav, you don't know Excel? Harsh, Anmol. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. So raise your hand now. So okay, everyone know Excel. So Excel में अगर आपको किसी सीट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना था तो which function you are using? You are using lookup formulas, right? Yes. यस मैम। Then पावर क्वेरी एडिटर में हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे किससे? With the help of merge query. Yes. डाटा मॉडलिंग क्या है, क्या इसका यूज है? इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको अगर दूं तो डाटा मॉडलिंग को हम यूज करते हैं अगर हमारे पास एनालिसिस के लिए मल्टीपल टेबल्स है, वी हैव मल्टीपल डाटा सेट. सो विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडलिंग वी क्रिएट रिलेशनशिप. what type of relationship? What is relationship? I told you. So first of all, data modeling. So data modeling is very important in Power BI. You also say second pillar of your Power BI.
is your data modeling concept. Without modeling, you are not able to do any analysis in Power BI. Clear? What is data modeling? Data modeling is second pillar of your Power BI. Without modeling, you are not able to do any type of analysis in your Power BI. Okay. So now in our today's class, we are going to start our data modeling module. First of all, what is data modeling? Clear to everyone? Okay, I give you one scenario, real life scenario. Tell you, see, if you are getting data, if you are getting data from 5 different sources, क्या मतलब है कि 5 डिफरेंट सोर्स, मतलब कि अब तक हमारा डाटा कहाँ से आ रहा था? सिंगल फाइल से. अगर आपका डाटा 5 डिफरेंट फाइल से आ रहा है, आपका एक फाइल आ रहा है आपके डाटाबेस से, 2 फाइल आ रहा है एक्सेल से, और 2 फाइल आ रहा है आपका टेक्स्ट फाइल. डिफरेंट डिफरेंट डाटा सोर्स है, डाटा भी है, डाटा सोर्स भी है, वर्ड फाइल भी है. सो इफ यू आर गेटिंग डाटा फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज, बट you want to do certain analysis. अब certain analysis, why you want? Because that is your role, right? And your analysis depend on these 5 files. So what happen if you directly try to do some analysis? So with the help of some visualization. अब आपको अगर मैं show करूं, this is the on your second layer of right hand side, this visualization part is visible to everyone. अगर अभी मेरे पास 2 फाइल्स हैं, that is sales file and that is product files. अगर मुझे कुछ एनालिसिस करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी शो करनी है, सिटी शो करनी है, तो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन. बट इट इज नॉट वर्कड वेल. बिकॉज why it is not worked? Because your data is coming from 5 different sources. So if you want to do some analysis on different type of files, so first requirement, you build relationship. अगर अब आपके सेल्स को नहीं पता कि प्रोडक्ट्स डिटेल्स में क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से? दे डोंट नो टू ईच अदर, दे आर नॉट फैमिलियर विद ईच अदर डाटा, राइट? अब कभी भी अगर आप 5 अलग अलग जगह से अगर डाटा शेयर कर रहे हो, तो सो दिस 5 सोर्स डाटा आर नॉट कमिंग इन वन फाइल, इट इज कमिंग एज 5 डिफरेंट फाइल. जो आपका टेक्स्ट फाइल है वो टेक्स्ट फाइल में आएगा, जो आपका एक्सेल फाइल है वो आपका एक्सेल फाइल में, जो डाटाबेस से आ रहा है उसके लिए आपको एक अलग प्रोसेस फॉलो करना होगा. सो इट इज कमिंग एज 5 डिफरेंट फाइल. योर वन फाइल डाटा इज नॉट फैमिलियर विद योर अनदर फाइल. So in that case, what we have need to do, and if you try to do more analysis, you not get much insights. So अब उसमें आपका रोल क्या है? How we build relationship. So in that case, you are the one who build relationship between these files. डाटा मॉडलिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. किसके बीच में? डिफरेंट सोर्स फाइल्स में, राइट? Then you get more insights. So building relationship between 2 or more files is known as data modeling. Now, if you see these 4 icons, everyone is aware about this canvas screen. This is your data, this is your visualization part, and next layer is your filter part, and this is your canvas. So everyone is aware about this screen. If you are able to see Yes, ma'am. these 4 icon on your desktop, so what is this? We already cover overview of Power BI Canva. So first is your report view. जो भी डैशबोर्ड आप एट द एंड क्रिएट करेंगे वो कहाँ विजिबल होगा? आपके रिपोर्ट व्यू में, राइट? देन सेकंड इज योर टेबल व्यू. अगर मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया है, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस टेबल व्यू, तो मुझे किस टेबल का डाटा शो हो रहा है? ये सेल्स टेबल का, राइट? इफ आई क्लिक दिस प्रोडक्ट टेबल,
तो मुझे किस टेबल का डाटा शो होगा? प्रोडक्ट 1 का। देन इन थर्ड टैब what we have? We Modification. have third view is our model view. 2 dialog box are there, and in each and every dialog box, what is this? Field list of the table. Yes, sales data table field list and product details field list. Then in fourth tab we have DAX view. So for data modeling, what we have need to do? Now tell me where we do data modeling? In model view. Clear? कितने क्वेश्चंस कवर हो गए? 2-3 questions we covered till now. What is data modeling? Data modeling we will use for build relationship between 2 or 3 or more different files. Yes. Then where we build relationship? Under model view, we have options for build relationship. Okay. So in model view, right now, if you see, we have these 2 tables, right? Data tables and product table. If I delete this, no need to worry. I tell you everything one by one. We explore everything. So these are the 2 tables. If I delete this table from my data set, delete from model. अभी आपको क्या आ रहा है कि सिंगल फाइल विजिबल है, ओनली 1 टेबल. सो आपको फील्ड लिस्ट भी किसका है? सिर्फ सेल्स डाटा का है. नाउ इफ आई गो बैक इन माई data tab, so here also we have only sales data tab. But what if I load once again product table? How we load? Under data tab, get data, we have this option. So I load this product detail table once again. Connecting. I directly load it in my Power BI desktop. अब एक और आपका फाइल क्या हो गया? डाटा में लोड हो रहा है. इट इज प्रोसेसिंग. टोटल 1862 रो इज लोडेड. बाय डिफॉल्ट क्या है? एक रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है. यहाँ पर क्या हुआ है? एक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पे वन रिलेशनशिप इज बिल्ट बिटवीन बोथ द टेबल्स. बाय डिफॉल्ट आपका रिलेशनशिप तो अभी क्रिएट हो गया. अब अगर आप न्यू यूजर भी हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये इनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है. दे आर कनेक्ट टू ईच अदर एनी हाउ, राइट. एक आपको रो लाइन आपको यहाँ पर विजिबल है, तो इसको जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि समथिंग इज देयर between both the tables. But I tell you one thing, for making any relationship, you have need of some common parameter. Note it in your notepad. By default relationship create हो रहा है because मेरे Power BI का setting में क्या है? Auto detection of our relationship enable है. अगर आपका वो क्लोज है तो आपको मैनुअली वो रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा. वो भी मैं आपको शो करूंगी क्लास में कैसे आप अपने इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू हैव नीड ऑफ सम कॉमन पैरामीटर. कॉमन पैरामीटर अगर अब आप दोनों टेबल्स को देखें तो व्हाट इज द कॉमन पैरामीटर बिटवीन बोथ द टेबल? Product Product ID. ID. Product ID is common in both the table. So on the behalf of product ID, our relationship is built. You know, in Power Query Editor, with the help of merge query, we add columns in sales data from product table. कैसे किया था? वहां पर भी हमारे पास क्या था रिक्वायरमेंट? हमें नीड था किसी कॉमन पैरामीटर का. तो वहां पर भी हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट आईडी कॉमन था, जिसके बिहाफ पे हमने क्या किया था? उस टेबल को मर्ज किया था अपनी सेल्स टेबल से, राइट. और लुकअप
फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास जो लुकअप वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, जो लुकअप एरे होता है। यस। तो जब भी हम किसी चीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ कॉमन पैरामीटर्स जरूर होते हैं। बट अब डाटा मॉडलिंग मैंने कहा यूज क्यों कर रहे हैं, आई बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड, आई डोंट वांट टू ऐड एक्स्ट्रा कॉलम। अगर आपको याद है तो जब हमने मर्ज क्वेरी किया था पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, जब वो क्या हो गया था, जो टेबल एक्सपांड ऑप्शन आया था, तो जिन कॉलम्स का मुझे रिक्वायरमेंट था वो कॉलम्स कहाँ ऐड हो गए थे, मेरी सेल्स टेबल में। राइट, सबको याद है वो जो एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, अगर मैं इसको करूं तो मुझे वहां पर मेरी सेल्स टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट आईडी था जो कॉमन पैरामीटर था। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, आई वांट प्रोडक्ट नेम, आई वांट सेगमेंट, ऑल्सो आई वांट सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। यस। तो वो 3 एक्स्ट्रा कॉलम कहाँ ऐड हुए थे मर्ज क्वेरी की हेल्प से, मेरी सेल्स टेबल में। जिससे क्या हुआ कि मेरा डाटा पहले कितने का था, 100 KB। बट जब मैंने मर्ज क्वेरी परफॉर्म किया तो मेरा डाटा कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, 110 KB। डाटा साइज इंक्रीज हो गया। यस। तो वो डाटा साइज जो इंक्रीज हुआ उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, मेरी कंपनी की मैनेजमेंट पे भी और मेरे टाइम पर भी। पहले मेरा 100 KB का डाटा जब मेरा क्वेरी परफॉर्म कर रहा था वो हो रहा था विद इन 30 सेकेंड। बट अब वो 110 का होने के बाद क्या कर रहा है, 32-35 सेकेंड प्रोसेसिंग के लिए ले रहा है। तो मेरा टाइम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया ना, कि एक्स्ट्रा डाटा जब आप ऐड करते हो तो आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टाइम भी इंक्रीज होता है। बट व्हेन यू बिल्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और 3 टेबल्स, आपका जो वहां पे क्या हो रहा था, आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट डिटेल टेबल्स क्या था मर्ज क्वेरी में, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लोड था, सेल्स टेबल भी आपका ऑलरेडी वहां पर लोड था। बट आपने फिर से डुप्लीकेसी क्रिएट कर दी, आपने उन सेम 3 कॉलम्स को कहाँ ऐड कर दिया, अपनी सेल्स टेबल में। बट जब हम डाटा मॉडलिंग की बात करते तो हम कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं करते। हम यूज किसका यूज कर रहे हैं, रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं, कि ये हमारे प्रोडक्ट डिटेल क्या है, हमारी रिलेटिव है। तो हम इसके पास कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर लेंगे उसी की टेबल के अंदर से। ये एग्जाम्पल सबको समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट डिटेल टेबल इज अवर रिलेटिव। अब अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम अपने रिलेटिव से ले लेंगे। एक रिलेशनशिप ही तो है हमारे अंदर, हमारे बीच क्या है, रिलेशन है। तो उस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर लेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। क्लियर till here what is the use of data modeling? Now I think it is clear to everyone. Yes. Okay, I show you one thing. First of all, I delete this relationship and I show you something. If I come back in report view and I want to do some analysis, what I want every, I want to check subcategory cells. What I want to check, subcategory cells. अब मेरे पास सब कैटेगरी भी है और मेरे पास सेल्स वैल्यू भी है। वेयर इज माय सेल्स वैल्यू, वी हैव प्राइस कॉलम। और मैं अगर चलो लेट वी ट्राई विद क्वांटिटी 1। सो आई वांट टू चेक हाउ मच क्वांटिटी वी सोल्ड ऑफ एवरी सब कैटेगरी। सो कैसे चेक करना है, जिस भी कॉलम को आपको एनालिसिस करना है उसको कहाँ पुट करना है, यहाँ वैल्यू सेक्शन सबको दिख रहा है, वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दीजिए। वेट, जस्ट अ मिनट। हाईलाइट दी, वेट, एक बार मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दूं, वैल्यू बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज भी इंक्रीज
कर देते हैं। सबको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है? अब सब कैटेगरी तो हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्वांटिटी कितना सोल्ड हो रहा है। तो वेयर इज माय क्वांटिटी कॉलम? वे दैट इज माय क्वांटिटी। सी, लेट्स सी what is in my table. Same value repeating. Yes, that is sum of my quantity. What is this? Sum of my quantity. बट मुझे चेक करना है इंडिविजुअल सब कैटेगरी के लिए। एसेसरीज के लिए मेरा कितना क्वांटिटी सोल्व हुआ, अप्लायंसेस के लिए कितना हुआ, आर्ट के लिए कितना हुआ। बट स्टिल हमको क्या मिला आउटपुट? एज एन आउटपुट हमें क्या मिला? सम ऑफ क्वांटिटी, टोटल सम ऑफ क्वांटिटी। जो भी टोटल सम उसका सोल्व हुआ है, क्वांटिटी सोल्व हुआ है, उसका सम हमें यहाँ पे अपीयर है, राइट? बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर टू ईच अदर। सब कैटेगरी को नहीं पता या सम ऑफ क्वांटिटी को नहीं पता कि उसको जो उसका जो सेल हुआ है वो डिवाइड पार्टीशन में हुआ है, कि कुछ पार्ट उसके एसेसरीज के थे, कुछ उसके अप्लायंसेस के थे, कुछ आर्ट्स के थे, कुछ बाइंडर्स के थे। उसको नहीं पता बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट ईच अदर। There are no connection between both the tables. So for getting accurate insights, first of all, we have need to build relationship between both the tables. So now you know where we build relationship under model view tab, right? Second, एक आपको पता है कि कहाँ पर मॉडल व्यू टैब क्रिएट, आपको मॉडलिंग क्रिएट करना है रिलेशनशिप। दूसरा, डाटा मॉडलिंग। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा मॉडलिंग? इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now note one thing in your notepad. How we build relationship between both the tables. Common parameters चाहिए, ये सबको पता है. Now we see how we build relationship. So as I told you, we have need of some common parameter. But you have need to know 4 more definition for data modeling concept. How many definition? 4 definition. What is this in 4 definition? First, what is lookup table? Anyone tell me what is lookup table? Yes, guys, please, what is lookup table? Business analytics students, where are you? Just tell me what is lookup table. From starting, we are discussing lookup array, lookup table. So what is lookup table? What is your lookup value? Lookup value is common value because Yes. we want to get some information based on that common column. Yes, that is our lookup. अब आपका जो lookup, that is our lookup table. And what is data table? We can say it as data table or fact table, where Yes. we have all kind of data in it. Yes, right, Subbu Lakshmi. So we students don't know what is lookup table. So lookup table is your master table where all values, all unique values are present, right, Subbu Lakshmi? Yeah, yes, ma'am. Lookup table is your master table. If I get to know about product detail, see, now we have product ID, but we don't have any information related to product. If I want to check, so where we check? In product detail. So for product ID, what is our lookup table? Product detail is our master table for product ID, for product details. So product detail is our lookup table. Yes? Yeah. Then data table. What is data table and what is the definition of data table? So data table is like your transaction table. What is transaction? Where most of the value will be duplicate. If you want to check for specific thing, so always go in your master table. But you want to check how many times
this quantity is sold, this product is sold, how much profit we are repeating, how much sales value we are repeating. So go in your data table, because data table is your transaction table. वहां पे जितनी भी वैल्यूज आपकी रिपीट है, सारा आपका डाटा आपको कहाँ मिलेगा? आपकी डाटा टेबल के अंदर. दैट्स व्हाई वी से दैट इज आवर डाटा टेबल. वन फॉर एग्जाम्पल, वन प्रोडक्ट इज सोल्ड 10 टाइम, तो उसका 10 टाइम का ट्रांजेक्शन सुबुलक्स में कहाँ अवेलेबल होगा? ट्रांजेक्शन टेबल में, राइट? सो उस टेबल को आप क्या बोलते हैं? दैट इज आवर डाटा टेबल, कि हमारा जितना भी डाटा है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो डुप्लीकेट है, वो सारा कहाँ अवेलेबल है एट द एंड? हमारी ट्रांजेक्शन टेबल में, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो आपका सारा रिकॉर्ड रखती है. सो योर दिस टेबल इज योर डाटा टेबल. सो फॉर प्रोडक्ट ID details, sales table is our data table and product detail table is our master table. Clear? What is lookup table and what is data table? Now for relationship, we want one key in both the table. Which type of key? Primary key and foreign key. That is very helpful, guys. Note it in your notepad. Lookup table, data table. Interviewer will be asked in your interview, what is lookup table? What is primary key? So what is primary key and what is foreign key? दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. जब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मेरे कलीग्स के साथ जब मेरा रिलेशन क्रिएट होगा, तो मैं क्या हूँ? अपनी फैमिली. तो वो रिलेशनशिप जब फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होगा, फैमिली रिलेशन में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर क्या है? एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की है. मैं हूं अपनी फैमिली के लिए, मैं क्या हूँ? प्राइमरी की. बट जो मेरा कलीग है वो मेरी फैमिली के लिए क्या है? फॉरेन की. क्योंकि वो किसके कारण कनेक्ट हो रहे हैं वहां पर? मेरे कारण. उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां पर कोई. समझ आया? गाइस प्लीज एटलीस्ट रिस्पॉन्स यस और नो. समझ आया? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so for build any relationship we want connection. वो कनेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, बट मेनली वी वांट प्राइमरी की एंड फॉरेन की. अब प्राइमरी क्या होता है? जो आपका यूनिक होता है. अगर आप किसी भी डाटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, इन एवरी डाटा सेट मोस्टली 99% वी हैव वन यूनिक कॉलम, वी हैव वन यूनिक आईडी. अगर प्रोडक्ट डिटेल्स की भी बात करें, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी है. अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की मैं बात करूं, मिंत्रा सब यूज करते हैं, मीशो सब यूज करते हैं, तो जितनी बार भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर आईडी आपका हर टाइम क्या होता है? सेम होता है? टेल मी. No, ma'am. Different order ID you are get every time. Yes. So that order ID is your primary key. But now I give you same example. जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप हर टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपकी यूपीआई आईडी क्या है? सेम है, डुप्लीकेट है हर ट्रांजेक्शन पर, राइट? ऑर्डर आईडी क्या है? प्राइमरी की है, बट आपका जो यूपीआई आईडी है वो क्या है? सेम है. हर टाइम अगर आप सेम यूपीआई से पे कर रहे हैं, तो योर ऑर्डर आईडी इज योर प्राइमरी की एंड योर यूपीआई आईडी इज योर फॉरेन की. क्लियर? I think now Yes, you ma'am. are able to relate with this example. Yes, ma'am. Once, I think now you are done with this 4 definition. So we are good to build relationship. To create relationship, no more steps is needed. Simply drag common parameter from one table to another table. One product ID in क्या है आपका? सॉरी, क्या हो गया आपका? एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. यस. अब आपको ये लाइन विजिबल है. अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है. यस और नो? Yes, ma'am. What now? Tell me what is one and what is this star and what is this drop down icon? What is this?
Ma'am, it is showing one to many relationship. What? Ma'am, it is showing One to many relationship. Yes. So one represent one. One means one, and star represent many. तो वन टू मैनी, बट ये जो आप आइकन देख रहे हैं इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों है इसका? ma'am. यस, आई थिंक योर नेटवर्क इज स्लो सिमरन. Yes, your voice is breaking up actually. यस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. तो जो आपका ये आइकन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाटा फ्लो. डाटा फ्लो अब मैं आपका बता रही हूँ क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में क्यों शो कर रहा है. एक बेसिक लैंग्वेज में हम सीखेंगे. सी, अगर ये मेरा प्रोडक्ट आईडी है, मैंने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो कहाँ पर मैं उसको मर्ज करूंगी? अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स में उसका एंट्री डालूंगी. यस. if I launch any new product, so where will I add it? I will add it in my product list with a different product ID, right? But Yes. जब तक वो मेरा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट, बट यहाँ पर आपको क्या है, सारे प्रोडक्ट आईडी मिलेंगे, बट हो सकता है मेरी कंपनी में कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसका सेल ही नहीं हुआ है अब तक. पॉसिबिलिटीज है. आज ही मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने उसको अपनी इस लिस्ट में ऐड किया, तो क्या वो पॉसिबिलिटीज है कि वो इसमें यहाँ पर अवेलेबल, मेरी सेल्स डाटा में अवेलेबल ना हो सकता है आज कल ही वो लॉन्च हुआ है, अब तक उसका कोई सेल नहीं हुआ हो, राइट? दैट इज द पॉसिबिलिटी. Yes, ma'am. इसलिए आपका जो ये डायरेक्शन है ये इस ऐसे दिखा रहा है कि आपका डाटा हमेशा कैसे आएगा? लुकअप टेबल टू योर डाटा टेबल. जब तक आपका वो डाटा यहाँ पर अवेलेबल, क्या ये पॉसिबल है कि कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है बट उसका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट आईडी में अवेलेबल नहीं है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं. अगर ऐसा है तो वो डाटा क्या है? इनएक्यूरेट डाटा है. यस. जब तक वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च ही नहीं किया तो उसका सेल कैसे होगा? इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. और यस, सो दैट्स व्हाई ये आइकन कैसे शो कर रहा है? प्रोडक्ट डिटेल टू डाटा. सो वन टू मैनी. अब वन क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट आईडी ऑलवेज विल बी यूनिक. तो यूनिक होगा तो उसका प्रेजेंस कितने टाइम्स होगा? सिंगल टाइम्स होगा, वन टाइम होगा. दैट्स व्हाई वन. और सेल्स पॉसिबिलिटीज है कि मेरा एक प्रोडक्ट 20 बार भी सेल हो रहा है विद इन ए डे, तो दैट्स व्हाई मैनी. वन टू मैनी. क्लियर? Clear till here? What kind of Yes. relationship? Yes. Yes, ma'am. So this kind of relationship we say one to many relationship. Why one to many? It is clear to everyone. Now you are able to create any relationship if you have some common parameter in multiple tables. So I think you are able to create relationship at least. Yes. अगर आपको किसी भी टेबल्स में कुछ कॉमन पैरामीटर देख रहा है तो आप सिंपली उसको ड्रैग करके क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डू दैट. बट इफ आई से आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, so how you will delete? Simply come on this line, right click, you have these two options. One is delete and second one is property. Select delete one and delete your relationship. Okay? But delete का आपको पता है क्योंकि I already delete 2 times. Now I show you what is the difference now in our data set. Come. ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिफ्लेक्शन दिख रहा है मेरी टेबल में आपको? मैंने कुछ नहीं किया. I just come back in my report view after building relationship in 2 tables. वैल्यूज दिख रही है आपको? ग्रैंड टोटल जो सम ऑफ क्वांटिटी था, सेल्स क्वांटिटी था, वो आपको बॉटम में दिख रहा है.
और हर कैटेगरी के लिए आपको एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल वैल्यू दिख रही है। एसेसरीज का कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, 2976। अप्लायंसेस का कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ आपका, 1729। देन लेबल्स का 1400। यस, यू आर एबल टू सी Yes, ma'am. कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि नाउ दे बोथ टेबल्स आर नोइंग ईच अदर, they know what is in subcategory column, what is in quantity column, they are familiar to each other's data. Yes, that's why it is showing like that. जब तक आपको पता ही नहीं, सी आपके घर में बर्थडे है, ओके, किसी भी पर्सन का, आपके मदर का, फादर का, सन, डॉटर, किसी का भी बर्थडे है, और जस्ट उसी दिन आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में नए नेबर्स सेटल हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो you don't know how many peoples are there in this family. Yes, अगर आपको उनके घर इनविटेशन देना है या आपको स्वीट्स देना है according to members quantity, so you don't know how many members are there in this family. Yes, तो आप कब तक आपको ये नहीं पता होगा जब लग आप दोनों फैमिलीज के बीच में कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो जाएगा। एक बार कनेक्शन बनने के बाद अब तो आपको पता है ना कि एल्डर कितने हैं, यंग पीपल्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं। नाउ यू आर अवेयर अबाउट, so that we say relationship reflect हो गया। now tell one more thing, this I tell you one thing more, if I, this is not, your relationship is not about dragging and dropping। अब तक हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ड्रैगिंग का एंड ड्रॉपिंग का, हमने यहां से ड्रैग किया और यहां पर ड्रॉप कर दिया, but this is not more about dragging and dropping। I show you one more way to create relationship। We have one option in home tab, that is manage relationship। if you click on this tab manage relationship, so अभी हमारा क्या है, already relationship active है। if I delete it, if I want to create one new relationship, so go in new tab, so here is the list of your tables, data tables, and by default अभी हमारे पास 2 tables है, तो उसने by default क्या किया, ऑटोमेटिकली आपके सेकंड टेबल को सिलेक्ट किया एज एन अल्टरनेट टेबल। अब उसने सी हाउ स्मार्ट इज योर पावर बीआई, उसने कॉमन पैरामीटर को भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। यस, प्रोडक्ट आईडी इसमें आप देखें तो आपका ग्रे कलर फिलिंग है और यहाँ पर भी आपका ग्रे कलर फिलिंग है। यस, अब आपको कार्डिनलिटी में देखे तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, मैनी टू वन, बिकॉज डाटा टेबल आपका फर्स्ट टेबल एज एन ट्रीट हो रहा है और आपका प्रोडक्ट टेबल कैसा ट्रीट हो रहा है, सेकंड टेबल, तो मैनी टू वन, इसमें आपका डुप्लीकेसी है, इसमें आपका यूनिक डाटा है। सी इफ आई क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन, वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टोटल 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, मैनी टू वन, वन टू वन, one to many, and many to many. Okay, we will cover these all types of relationship by one. Now cross filter direction, डायरेक्शन आइकन की अगर हम बात करें तो हमारा जो इस टेबल के लिए डायरेक्शन है वो क्या है, सिंगल है, क्योंकि हमारी एक मास्टर टेबल है और दूसरी डाटा टेबल, तो वहां पर हमारा सिंगल टेबल से डाटा इनपुट हो रहा है। यस, so that's why it is showing single filter direction, single, and click on OK and close। रिलेशनशिप है, डिलीट का आपको पता है, आपको डिलीट कैसे करना है। सो अगर आपको मैनुअली, जब अगर आपका ऑटो डिटेक्ट, अभी मैंने क्या बताया कि मेरे पावर बीआई का सेटिंग में ऑटो डिटेक्शन डाटा मॉडलिंग का क्या है, इनेबल है, बट फॉर मे बी फॉर any other students it is not happening by automatically, so manually आप कैसे create कर सकते हैं, with the help of manage relationship। so once you build the relationship, now come back to your report view
And now if I explore some more, if I do some more analysis, so I am able to do that. If I put segment, तो यहाँ पर आपको सेगमेंट का भी आपको क्या पता चल रहा है कि किस सेगमेंट का एसेसरीज आपके किस सेगमेंट का है, कंज्यूमर। फिर एसेसरीज आपके कहाँ पे भी है, कॉर्पोरेट का भी एसेसरीज होता है। कॉर्पोरेट के एसेसरीज का कितना सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, 751। बट कंज्यूमर सेगमेंट का कितना एसेसरीज सोल्ड आउट हुआ है, 1608। तो अब ये कनेक्ट हो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा इनसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। यस। अब जब डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जब भी हम क्लास में पढ़ाते तो एक जनरल डाउट होता है, जो आपकी क्लास में हमने ऑलरेडी कवर किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरी एंड व्हाई वी विल मूव टुवर्ड्स न्यू थिंग्स। सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू एवरीवन। यस, because merge query added extra column to your data and data modeling not create additional columns. And your query optimization is also increases when you using merge query concept. But in data modeling, there is no reflection, there is no change in your query optimization time because you are not creating any extra data. Yes. So now अब तक हमने क्या किया, मैंने काफी नई चीजें आपसे डिस्कस की, बट नाउ आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो हर्ष, एनीवन, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन टू यू ऑल, जिसको भी पता हो वो अनम्यूट करके मुझे बताएगा। सो व्हाट इज डाटा टेबल? सुबुलक्ष्मण already told us. What is lookup table? What is primary key? Okay, let me know what is foreign key. Anyone Foreign from? key is, yeah, ma'am. Yeah. Foreign key is something that like it describes the relationship between the secondary party and the connection of the primary party. Suppose there are three parties, A, B, and C. If B is the common connection between A and C, then C becomes the secondary key. Yes, absolutely. Well done, Sirat. Okay, so why we move with the data modeling rather than merge query? As merge query, like it creates a new column, but data modeling does not do so. Okay, Sirat, so what is the drawbacks of adding extra column? Ma'am, it will change the whole data. Anything else? Optimization will be slow, ma'am. Yes, right, Simran. Okay, difference between data modeling and merge query? Data modeling is used to create relationship between two tables, and merge queries is used to create a new column by merging two different columns. This is not right definition, Simran. Uh, ठीक, डाटा तो दोनों कॉन्सेप्ट से हम डाटा मॉडलिंग की हेल्प से भी हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम दूसरी टेबल्स का डाटा यूज कर सके, राइट? और मर्ज क्वेरी भी क्या कर रही है, वो ही सेम काम कर रही है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि मर्ज क्वेरी की हेल्प से हमारे डाटा में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा है, बट डाटा मॉडलिंग की हेल्प से हम एक रिलेशनशिप, एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं इन बिटवीन बोथ द टेबल्स। वी विल क्रिएटिंग वन ब्रिज, राइट? yes, ma'am. Okay, so clear till here? Yes, ma'am. Okay, I want to do some more analysis, but I think now we don't have too much time. It's already 4:50, so we will cover our next topic in our next session. So if anyone have any doubt till here, please unmute yourself and let me know. If anyone have any small doubt, no need to feel shy. Just unmute yourself and let me know. I want to start one new topic, but time not permit us for our today's. Ma'am, No doubt. I have a question. I just want to know the relationship, like difference between merge query and append query. See, सुबुलक्ष्मी, मर्ज क्वेरी जो आपका करता है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली डाटा ऐड कर रहा है, राइट?
क्या Yeah. करता है, कॉलम को एक्सट्रैक्ट करता है। तो कॉलम कहाँ ऐड होता है आपका, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, राइट? Yeah. वर्टिकली आपका ऐड होता है आपके डाटा में। बट अपेंड क्वेरी का यूज हम कब करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा सोर्स है वहां से कंटिन्यूअसली डाटा फ्लो होता है एवरी मंथ। I give you one real life example. For example, you are working in any organization. अब HR के पास क्या है, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज नहीं हुए हैं तो हर मंथ का सैलरी का लिस्ट बन के जाता है HR के पास, यस? Yeah. या HR मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम को वो शेयर करता है एवरी मंथ। तो Yes. सेम वो डाटा स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पर क्या है, सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पर क्या है, सेम है, सैलरी कॉलम्स, GST कॉलम्स, डिडक्शन जो भी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर सारा डाटा स्ट्रक्चर सेम है, बट डाटा स्टिल कंटिन्यूइंग फ्लो, यस? सो Yes. आपको हर मंथ क्या करना पड़ रहा है, उसको ऐड ऑन करना पड़ रहा है। जो आपका मैनेजमेंट टीम है, अकाउंटिंग टीम है, उसको हर मंथ क्या करना है, जैसे उसने जन का मंथ डाटा स्टोर किया, क्योंकि डाटा तो सबको चाहिए ना बैकअप के लिए, फिर उसने उसी फोल्डर में फैब का भी मंथ का डाटा स्टोर किया, देन मार्च मंथ का डाटा, देन अप्रैल मंथ का डाटा। सो आई थिंक दैट इज लिटिल बिट टफ टास्क फॉर द मैनेजमेंट टीम, यस? बट इफ यू आर लोडिंग दिस फोल्डर इन योर पावर क्वेरी एडिटर, सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब आपका जैन मंथ के बाद फैब मंथ का डाटा आएगा सेम स्ट्रक्चर के साथ, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड होगा, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब रो में वो आपका डाटा ऐड ऑन होगा automatically. Okay. So that is the difference between merge query and append query. Merge query add data vertically and append query will add the data horizontally. Okay, ma'am. Thank you. Yes. You're most welcome, Subulakshmi. Anyone have any else down? Mute. Yes, Harsh. Harsh, you have any doubt? No, ma'am. Okay. So it seems good. If you do not have any doubt, so I will stop my screen. So bye everyone. That's for all today. We will meet in our next session. Okay.